morning everyone. As earlier we all have completed the syllabus of first term maths class 8. Now we are going to discuss on key points of first term only. Okay. So first chapter, what syllabus in your first term is chapter 1, chapter 2, chapter 7, chapter 10, chapter 17 and chapter 18. You all have got the syllabus of maths class 8. So now we are going to discuss rational number. What is rational number? You all knows because we all have learned in previous class. So rational number क्या है? Any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. मीन्स कोई भी नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में, बट q इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन q क्या होगा, ये q क्या होगा, 0 के फॉर्म में नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर. q देखो, जैसे एज फॉर एग्जांपल 0 आई हैव टेकन, 0 इज रैशनल नंबर, बट डिनोमिनेटर इसका क्या है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 0 नहीं है. ठीक है, तब ये क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ. बट अगर 0 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसके वैल्यू को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट वैल्यू गिव करता है. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन इन रैशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. मीन्स whatever integers and fraction, these all are calculated at rational number. 0 has no reciprocal, means 0 का कोई reciprocal नहीं होता, reverse term नहीं होता. Means what is rational number? Any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. As for example 4 by 7, 2 by 9, 3 by 7, 2 by 1, means denominator should be number, not in 0 form. If we are taking 0 by 0, denominator is 0, that answer is what? Infinite, which is not defined. Number is not defined. That's why we are taking q is not equal to 0. इसलिए हम लोग लेते हैं q is not equal to 0. And all integers and fraction, whatever integers and fraction, जो भी integers और fraction है, they all are written as rational numbers. तो कैसे लिखते हैं? That is calculated as rational number. 0 का क्या होता है? कोई reciprocal नहीं होता, उसको कोई reverse term नहीं होता है. Understood this rational number? Now next chapter, come to next chapter. What is next chapter? Is chapter 2, exponent and powers. Exponent and powers. In this chapter we all have learned laws of exponents. Laws of exponents, whatever exponent laws we have learned. See, again we are learning a to the power m into a to the power n. See, here m and n powers are different but base are equal, a and a. If base are equal, that means power should be added. Means power क्या हो जाएगा, add होगा. Here in division sign, if it is given in division, that means powers are subtracted. M minus n. Multiplication, addition. Division, subtraction. If whole power m, that means a to the power m into n. M and n should be multiplied. Whole to the power m is given, that means separately we will write a to the power m into b to the power a, b to the power m, means whole to the power m is a to the power m, b to the power. Anything to the power 0 means whatever number is given, but if we are taking power is 0, the value is 1 only. Anything to the power 0, 2 to the power 0, 7 to the power 0, 100 to the power 0. If 1 lakh to the power 0, value is 1 only. That means anything to the power 0, value is 1. A by b whole to the power m. How we will write this? A to the power m divided by b to the power m. Next, see, a to the power minus m means power is in negative.
called multiplicative inverse of a to the power m. ये क्या है, इसका a to the power m का multiplicative inverse है, a to the power minus m. a to the power minus m, a to the power m का क्या है, multiplicative inverse. इसको क्या बोलते हैं, a to the power m का multiplicative inverse. Now come to the power chapter 7. Chapter 7 क्या है, percentage and its application. Percentage and its application. Percentage means percentage, per 100 or out of 100 means percentage का मीनिंग क्या हो गया, per 100 या out of 100 means per 100 या out of 100 जितना हम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज. मीन्स एज फॉर एग्जाम्पल 85% इज गिवन, 85% दिया हुआ है तो 85% को कैसे लिखेंगे, आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 है मीन्स आउट ऑफ 100 मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 100, तब ना हम कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ 100. मीन्स हमारा अगर मार्क्स आता है 75 और टोटल मार्क्स है 100 तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 100 में 75 आया, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ 100. So percentage is the numerator of a fraction with denominator 100. Means percentage क्या है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 100 होता है. तो परसेंट मीन्स क्या हो गया, पर 100 और आउट ऑफ 100 मीन्स आउट ऑफ 100 जो कैलकुलेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज. और परसेंटेज क्या हो गया, डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, ऑलवेज डिनोमिनेटर शुड बी 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज. इसमें हम डिफरेंट फॉर्मूलाज भी हैव लर्न, हाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस. If GST is given, then how we will calculate the sums, all things we all have learned. So we have discussed only percentage definition. You all have done the sums and whatever formulas, that is very important formulas we all have used. Now next come to the next chapter, chapter 10. Chapter 10, what is chapter 10? Algebra. Algebra मेन पॉइंट इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल वी हैव लर्न. कांस्टेंट क्या होता है, अ सिंबल विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. मीन्स ऐसा सिंबल जिसका क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू देता है, गिव करता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे 2, 3, 4, 7, पाई एक्सेट्रा. लेकिन वेरिएबल क्या होता है, इसका वैल्यू क्या करता है, वेरी करते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है. अ सिंबल विच कैन बी गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल. कांस्टेंट क्या हो गया, ऐसा सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू देता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट. और वेरिएबल क्या हो गया, जो क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. ए बी सी एक्स वाई एक्सेट्रा. Addition, subtraction, multiplication, division, and how we will divide the different fraction, algebraic expressions, all things we all have learned in chapter. So I think you all have cleared this chapter. Now come to the next chapter, chapter 17, that is visualizing solid. In this chapter we all have learned the about faces, vertices, edges, etc. of cuboid. In earlier classes we all have done the sums also. So today in earlier classes you all have learned about Euler's formula. Euler's formula क्या था, f plus b minus e is equal to 2. f क्या डिनोट करता था, f denotes face, V denotes vertex and E denotes is equal to 2. मीन्स इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बहुत सारे सम्स सॉल्व किए थे. वी हैव डन द सम्स. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द डेफिनेशन, मेन पॉइंट्स, दैट इज polygonal region. Polygonal region, a solid made up of polygonal region, a solid made up of polygonal region is called a polyhedron.
मीन्स एक सॉलिड जो किससे बना होता है, पॉलीगोनल रीजन से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीहेड्रॉन। पॉलीगोनल रीजन से जो बना होता है दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन में एग्जांपल क्या ले सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड। फॉर्मूला हम लोग इसमें लर्न किए हैं। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है, F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये हमारा मेन थिंग है जिसको लेकर हम डिफरेंट सॉल्व करते हैं सम्स, ठीक है। F प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, ये बहुत डिफरेंट, ये मेन हेडिंग है, इसको लर्न करके रखना है। इससे हम सॉल्व भी किए हैं। नाउ तो क्लियर दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द फर्स्ट टर्म सिलेबस। लास्ट चैप्टर क्या था हमारा, चैप्टर 18 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम डिफरेंट फार्मूलाज लर्न किए थे जिसपे बेस्ड हमारा सम सॉल्व किया गया था। सो नाउ अगेन वी आर डिस्कसिंग दैट फार्मूलाज ओनली। तो डिफरेंट फार्मूलाज है, ट्रेपेजियम का पढ़े थे, रोम्बस, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, this volume, surface area, total surface area, lateral or curved surface area, these all things we have learned. So again we are discussing the formulas only. We have done the sums also. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। मीन्स दोनों को जब ऐड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, एरिया मिलेगा ट्रेपेजियम का। रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, रोम्बस का डायगोनल, जैसे कि ले लो एक रोम्बस, ये उसका डायगोनल हो जाएगा, ये और ये। तो ये दोनों डायगोनल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, ये दोनों डायगोनल ए बी सी डी, ये D1 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। तो ये D1 और D2 को मल्टीप्लाई करके हाफ से जब डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा रोम्बस का, ठीक है। रोम्बस का दो डायगोनल को जब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाफ से, तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा रोम्बस का। नाउ कम टू द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड पे आते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। G डिनोट्स वॉल्यूम, S ए सरफेस एरिया, C एस ए कर्व सरफेस एरिया, L एस ए लैटरल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, H मीन्स हाइट। सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मीन्स जब लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्यूबॉइड, इतना का फॉर्मूला हम लोग लर्न किए। अब आ जाओ क्यूब पे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करने का, ए क्यूब, मीन्स ए को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे साइड इंटू साइड क्या मिलेगा, वॉल्यूम। सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 साइड से तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मिलेगा। लैटरल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया 4 इंटू ए स्क्वायर। नाउ कम टू सिलेंडर। सिलेंडर पे आते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आर यानी रेडियस, एच यानी हाइट, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ रोम्बस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड क्यूब। These all things we have learned in first term syllabus of class 8 maths. These all are very important things we all have studied, and these all are very important for your exam. So you all learned this